guys, welcome back to your channel Canada Expresso. I hope you all are doing well. We are. Most definitely. So guys, I hope आप लोगों को last vlog बहुत अच्छा लगा हो जिसमें मैंने आपको एक तरीके से brief structure and overview of IELTS दिया था. So this is the video that I think you should watch for actually scoring in IELTS, and you know what are the tips and what are the recommendations and what are the means by which you can improve your IELTS score. See guys, we are by no way experts in IELTS because you see it's a big business and you have so many people out there trying to help you, so many coaching institutes and everything. We did it by ourselves because I think there is a lot of resources which are available over the internet जिसके करके आपको किसी सेकेंडरी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने जाने की ज़रूरत नहीं फील होनी चाहिए. हम लोगों ने जिस तरह किया था वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, सो बने रहिए हमारे साथ. राइट. तो जो IELTS है ना, जो इतना बड़ा हवा बना हुआ था और एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट IELTS, दे फियर IELTS बिकॉज ये ना एक अंदर से लगता है कि इट्स अ टेस्ट फॉर व्हाट, स्पीकिंग इंग्लिश, राइट. और हम लोग ना यूजुअली इंडिया में वी आर नॉट सो यूज्ड टू टॉकिंग इन इंग्लिश. तो डेफिनेटली इट इज़ चैलेंजिंग, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं एंड इफ यू फॉलो द थिंग्स दैट वी मेंशन हियर, यू विल बी एबल टू definitely do good in your IELTS exam. Guys, मान लो अब आपका एग्जाम है, तो say whenever you start booking, always give yourself 30 days notice. मतलब 30 दिन के बाद की ही डेट लीजिए जरूर जो IELTS की, क्योंकि आपको मिनिमम एक महीना जल्दी में पेपर मत दो. बिल्कुल नहीं. और it will be a waste of money, right, and you will end up being disappointed and discouraged, and then you'll have to go give again. Yes. So it's better कि सहज पके सो मीठा होए is what they say in Punjabi, कि जो with patience whatever fruit is born it is sweetest. So give yourself minimum 30 days window before you go and give your exam. Even if you are a decent English user and you can converse in English well, I will still say there is no other thing better than practicing thoroughly and strategizing before you give an IELTS exam. And then you can do it in one shot. Yes. So I think Ravneet, let us take each parameter of the exam and then in general कि कैसे exam की preparation होनी चाहिए. So first जो 3 things that you have to keep in mind before the date of your exam or when you are going to the hall is first is नींद अपनी पूरी रखो. जिस दिन पेपर देने जा रहे हो उस दिन रेस्ट, जिस दिन आपका पेपर है उससे एक दिन पहले तक जितनी आप प्रिपरेशन कर सकते थे, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो. बट ऑन द डी डे मेक श्योर यू आर वेल रेस्टेड, काम, फेड एंड फोकस्ड प्लस प्रेजेंटेबल. राइट. Be your best self. Yes. So guys, let us now take up all the 4 parameters, which is listening, reading, writing and speaking. तो रवनीत, let's start with listening, क्योंकि listening के तो perfect आपके ही हैं 9 bands. See guys, listening का टेस्ट जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है. It's 25 to 30 minutes और इसमें one has to answer 40 questions. And to get a maximum band score, that is 9 bands, you have to score perfect. 39 or 40 out of 40 questions should be correct for you to get a 9 bands. Right. और listening के साथ ये है कि अगर आप अपने आप को listening की प्रिपरेशन करते टाइम इस तरीके का माहौल अपने आसपास क्रिएट करते हो कि आपके कान में इंग्लिश पढ़ती रहे, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है. कि आप इंग्लिश के सीरियल देख रहे हो, न्यूज़ इंग्लिश में देख रहे हो, या आप कोई बिंज वॉच ही कर रहे हो, कोई इंग्लिश सीरीज कर रहे हो. बेस्ट टाइम है अपनी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन को यूज करने का. एब्सोल्युटली. और बहुत फ़ायदा होता है इसका बिकॉज यू गेट टू नो सो मैनी डिफरेंट एक्सेंट्स. बिकॉज इसमें एक्सेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको विद प्रैक्टिस विद पेशेंस सुनने के साथ ही एक्चुअली क्लियरली समझ आने लगेगा. उसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको एक ही दिन में एक्सेंट समझ आ जाए. सो राइट, बिकॉज सी देखिए IDB जब आप एनरोल करेंगे दे विल सेंड यू अ बुक राइट टू योर होम. उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं पीछे सारे. सो उसके पहले तो जो सॉल्व्ड है उनको पढ़ें, उससे उनका पैटर्न समझें एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर आंसरिंग दीज थिंग्स. सो दिस विल बी अ वेरी गुड बैकग्राउंड टू योर प्रिपरेशन. तो लिसनिंग में
4 सेक्शन होते हैं. जब आपका लिसनिंग का पेपर इज द फर्स्ट पेपर विच यू गिव व्हेन यू गेट इनटू एन एग्जामिनेशन हॉल, चाहे वो आईडीपी के सेंटर में जाके आप दे रहे हो, चाहे आप पेन एंड पेपर दे रहे हो. तो यहाँ रखना जिस सेंटर में जा रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड जा रहे हैं, चाहे आप राइटिंग बेस्ड जा रहे हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू कैरी एनी गैजेट्स. नो गैजेट्स एट ऑल. So no iPhones, No iWatches, iWatches. no earpods. Nothing. You cannot carry any other any mechanical device with you other than your maybe pencil, pen, your passport, and your appointment letter. I The think, one which yes. has your examination date, email, Yeah. का print. ये चीजें आपको लेके जानी और है. अपनी डिटेल्स जरूर चेक करिएगा कि पासपोर्ट नेम अगेन वेरीफाई देयर एट द एग्जामिनेशन हॉल कि वो मैच कर रहे हैं. So Okay, listening we were करिए. talking about listening. Now listening has 4 sections which have 10 questions each. So मेरी strategy ये होती है थी लिसनिंग का पेपर देने से पहले कि जैसे ही आपको सेक्शन के बीच में या जैसे आपको पेपर मिला है तो आप उससे पहले यू क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस. आप एक बार फटाफट से क्वेश्चंस पढ़ लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए राउंड अबाउट कि आपको क्या आंसर्स आने वाले हैं. बिकॉज आपने ईयरफोन्स पहने होते हैं. आपने ईयरफोन्स और पहने होते yeah. हैं और कंसंट्रेशन शुड बी एट योर टॉप मोस्ट Also, you कंसंट्रेशन should ऑन check दिस. before the exam starts. You should check कि आपकी ईयरफोन्स ठीक है कि नहीं है. उसको टेस्ट काम कर वो रहे लोग सब हैं, करवाते वॉल्यूम हैं वैसे आपके वहाँ पे. हिसाब से है, आप Yes. कंफर्टेबल हैं या नहीं है. दे गिव यू 5 minutes बिफोर स्टार्टिंग द support staff एग्जाम is टू very active there, check yeah. दिस. यस, प्लीज डू मेक श्योर दैट योर हेडफोन्स आर वर्किंग फाइन, नहीं तो So आपका that you don't पेपर panic. Yeah. बेकार हो जाएगा. Right. नेक्स्ट चीज़ एक्सेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. दूसरी चीज़ है कि ये जो स्टार्ट होगा पेपर उसके पहले 1-2 सेक्शंस में नॉर्मल आवाज़ में चलेगा, नॉर्मल स्पीड पे. जैसे जैसे आपका पेपर आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस जो हैं वो उनकी जो बोलने की स्पीड है इट विल ग्रो प्रोग्रेसिवली क्विकर. So by the time you are reaching the end of the exam, they are talking so fast that there is a great possibility that if you are not concentrating, या आपने then questions you पहले will ही पढ़े होंगे. miss out. तो अपने क्वेश्चन On जरूर the पढ़ने होंगे. answers. आंसर क्या ढूंढना है. यस, टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें कीवर्ड्स नोट करो. हाँ, जो आपको सेक्शन के बीच में एक आधे मिनट का या 30 सेकंड का टाइम मिलता है उसमें प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन सो दैट यू नो व्हाट आंसर्स टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर लिसनिंग. ऑल्सो लिसनिंग के सेक्शन में 2 चीज़ें हैं जो आपको एंड में प्रॉब्लम देती हैं. एक तो वो है स्पीड. अगर आपने क्वेश्चंस पहले से नहीं पढ़े हुए तो स्पीड जो है उससे क्या होगा कि आप एक आधा क्वेश्चन बीच में मिस आउट भी कर जाएंगे क्योंकि आंसर्स कई बार उनके एम्बिगुअस होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं. एक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डायरेक्शन सेंस आपकी टेस्ट की जाती है. तो देयर आर 3 थिंग्स दैट यू आर डूइंग एट वन टाइम. एक तो आप सुन रहे हैं, दूसरा आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तीसरा आप क्वेश्चन याद कर रहे हैं. तो आपको अपनी सारी फैकल्टीज उस टाइम सबको sync इकट्ठे करना है. करके फोकस करना पड़ता है. और बाय चांस खुदा न खास्ता आपसे एक कोई आंसर मिस हो गया और आपको लग रहा है कि रिकॉर्डिंग आगे चलती जा रही है क्योंकि रिकॉर्डिंग तो रिपीट नहीं So होगी. don't stop. Go with it. Don't waste your time on that. जौन सा आंसर आपको दिख रहा है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन का या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन का आप वो आंसर फिल कर दें, नहीं तो आपके सारे सब्सिक्वेंट आंसर्स गलत हो जाएंगे. So even you can leave it. Go to the next one. Don't even उसको फिर एंड में पेपर पे वापस आ जाइए. And then you can बाद probably में try to remember क्या when you हुआ are था. checking your answers, make sure that you are trying to recall what the recording was saying and then you can make a informed guess as to what the answer could be. Right. जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड के सेक्शन में या जो डायरेक्शन बेस्ड साउथ साइड, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, ये क्वेश्चंस जो होते हैं दीज आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड बाय द एंड ऑफ इट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट रियली हार्ड. लिसनिंग के बाद आता है राइटिंग जिसके बारे में आपको बताएंगे प्रभजीत. राइट. सो राइटिंग जो है जी, एक तो सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो पेंसिल से ही होना है. सो यू हैव टू कैरी एटलीस्ट 2-3 पेंसिल्स वेल शार्पन्ड. अपना शार्पनर, इरेजर सब लेके जाओ. सो जो राइटिंग एग्जाम है जी, इट इज़ इन 2 parts. One is an email or a letter part, which is shorter also in terms of marks, which is 40%. And the second one is essay, which is an opinion based, or you have to write a 500-word essay, which is 60% of the marks. So now what you have to be very critical about is कि जब भी आप ये दोनों क्वेश्चंस को आप अटेंड कर रहे हैं इसमें आपको यू हैव टू माइंड मैप इट. लाइन बना के फिर जो रफ वर्क है उसमें आप अपना जो स्ट्रक्चर है ऑफ दी से ईमेल का रिप्लाई या ऐसे का जो या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो बड़े वाला है 500 वर्ड्स वाला, उसको मैप कर लो कि उसमें एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी, एक कंक्लूजन पार्ट हो. what they are going to be checking you on is
कि आप जो लेटर वाला पार्ट है या जो ईमेल वाला पार्ट है उसको जितनी जल्दी हो सके 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म करें एंड गिव 40 मिनट्स टू दी 60% ऑफ द जो 60% मार्क्स हैं विच इज़ दी essay. So now they are going to be judging you on the part of say the word limit, very critical. You are not supposed to really exceed that beyond 5%. मैक्सिमम अगर 500 है तो कोशिश तो वैसे करो 500 के अंडर अंडर रहे, 495, 504, 502 ऐसे रहे. Then the second part is they're going to be, your handwriting has to be very legible. ये ना हो कि खिचड़ी बनी हुई है, आपको बढ़िया से पुलाव या बिरयानी बनानी है. Okay, so now they are also going to be checking you on spellings. So since I was confident on while writing the spellings were right, तो मैंने तभी self writing वाला physical दिया. I did not go for the computer based one. If you are going to go for the computer based one, make sure you have a decent type speed. Right, very critical. Now grammar जो है they are going to be checking and they are really not bothered about the content कि आपने उसको कितने अच्छे से डिफेंड किया नहीं किया, बट आपकी continuation और आपकी वर्ड्स की जो coherence है and context to the essay and the question, that is only relevant. So they do not care कि आपका opinion क्या है उस question के बारे में. They want to see how you have structured it. Also, whether you have covered all points of the question or not. If the question is saying that you have to discuss both sides of a topic and give your opinion, then make sure you discuss both sides. So questions कैसे आते हैं जी? ऐसे हो कि अपने आप email लिखिए for an application that you are going for a wedding of a relative. इसकी email आपने अपने बॉस को लिखनी है. So उसमें आपने कैसे उसको एड्रेस किया है, कैसे आपने उसको इंट्रो दी, आपने आपको बताया कि मैं ये एम्प्लॉय हूँ और मेरे फैमिली में ये फंक्शन है तो मेरे को जाना पड़ेगा, एंड यू रिक्वेस्ट फॉर अ लीव. सेकेंड, जैसे आपका ऐसे बेस्ड है, इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं गैजेट्स आर गुड फॉर चिल्ड्रन और यू फील दे आर बैड फॉर चिल्ड्रन, सो गिव एन ओपिनियन. सो नाउ हियर यू हैव टू गिव एन इंट्रो एंड देन पुट अ बॉडी एंड put forth your opinion and then give a conclusion based on that body. Make sure the format is right. Make sure that you cover all points. Format is right. Also, you will be checked for your grammar, your coherence to the subject matter, your capitals, your articles, and your tenses. Right. So now, अब जब हम इसकी preparation कर रहे हैं, writing and say speaking, most definitely आपको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जी. ये ना आप इवॉल्व करते हो, ये नहीं कि आपको पहले दिन में आपने छक्के मार दिए. नो, हम यहाँ पे युवराज नहीं है. आपको यहाँ पे जो खेलना है ना वो ड्राविड की तरह लॉन्ग इनिंग्स खेलनी है. वो जो 30 दिन आपको मिलते हैं ना प्रिपरेशन के, फ्रॉम द डे यू बुक योर एग्जाम टिल द डे यू गिव इट, यू शुड रेगुलरली प्रैक्टिस योर राइटिंग स्किल्स, बिकॉज राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती है, जस्ट लाइक स्पीकिंग. और जहाँ तक राइटिंग और रीडिंग का सवाल है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन मिल जाएंगे, इसलिए you don't have to worry as to for the dearth of material. You will get plenty of material online. So Ravneet, what about the reading part of it? Okay, reading is my favorite because I used to find it the easiest. Reading again is like, yeah, reading is actually because you're not supposed to be timed by anybody. आपको खुद अपनी पेज पे पढ़ना है और उसको आंसर्स देने. So I feel reading is one of the exams which you can really ace. Yes, reading you can really ace because you have there is nothing running at the back of your mind कि आपको सुन के उसी टाइम आंसर लिखना है, ऐसा नहीं है. Reading you get 60 minutes to answer 40 questions and it is divided into 3 sections. So what my strategy of attempting reading, because 10वीं जिसने दी है कॉम्प्रिहेंशन वाला पैसेज जैसे हम पेपर में देते थे, ये मोर और लेस वैसा ही होता है, एक्सेप्ट कि इसमें कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. बट रीडिंग में जो मेरी स्ट्रैटेजी होती थी वो ये होती थी कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने आप को टाइम करके प्रैक्टिस करो ताकि आपके पास एटलीस्ट 5 से 7 मिनट बच जाए एंड में इन एवरी सेक्शन, रिव्यू करने के लिए. सबमिट टाइम योरसेल्फ. यस, ऑलवेज टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस. सबसे पहले वी गो थ्रू द क्वेश्चंस. After every article there are questions which need to be answered. You go through the questions so that you know what answers you are looking for. Second step that I used to do is I used to skim the passage. मतलब फटाफट से क्विक रीडिंग मार ली ताकि आपको आइडिया लग गया कि जनरल आंसर्स आपको कहाँ पे मिल रहे हैं. Then you do a thorough reading, underline the answers and mark the answers. Right. This is how I used to attempt it. Right. Great. So you have anything else to add? No, I think आपने काफी अच्छे से पढ़ा दिया ये वाला रीडिंग वाला पार्ट. अच्छा, अब coming to the questions which I used to find difficult. Now there are contextual based questions here which can either be true, false, given, not given.
ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये Tricky सबसे होते ज़्यादा हैं। कंफ्यूजिंग होते हैं और ये आपको केयरफुली सॉल्व करने पड़ते हैं. So now I think ये तो तीनों एग्जाम एक दिन होते हैं. So reading, listening and writing is on one day. So 3 hours you're going to be very well prepared. अपने आप mentally sound रखें. और जो speaking होता है ना वो अब स्पीकिंग वाले बताएंगे इनके 9 बैंड आए थे स्पीकिंग exactly. में. अभी ब्लॉग्स बंद कैसे रहे भाई, मुंह से बोलना तो पड़ता ही. और आदमी काम किस लिए कर रहा है, 2 पल के लिए अपने विचार व्यक्त करता है. Anyhow, speaking. Now for speaking you have to be very critical. कोई हुआ नहीं बनाना जी. मैं जैसे क्या था, आई वेंट कि भाई आई एम गोइंग ऑन अ डेट विद द एग्जामिनर. सो मैंने कोई प्रेशर लिया ही नहीं कि भाई मेरे को किसी ने जज करना है. जो स्पीकिंग होता है जी, इट इज़ इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज जनरली योर इंट्रोडक्शन. सो इसमें आपको जनरली यू हैव टू गो एंड विश हर, से शी इज देयर. सो अगेन इसमें भी गैजेट्स वैजेट्स आप कुछ नहीं लेके जा सकते और ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम होता है, 11 से 15 मिनट में खत्म भी हो जाता है. राइट. उसने आपको जज करना है 11 से 15 मिनट में कि आपकी एक तो फ्लुएंसी कैसी है, आपके वर्ड कनेक्ट्स कैसे हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हर क्वेश्चंस एंड व्हाटएवर शी इज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद यू. सो इट इज बेसिकली एन इंटरेक्टिव process, and this is the only speaking is the only exam where you are actually in connect with a other human who's judging you. So आपको इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद क्या होता है, क्यू कार्ड निकालते हैं. सेकंड सेक्शन में क्यू कार्ड पे कुछ ना कुछ लिखा होता है जिसके बारे में आपने 2 से 2.5 मिनट 2 से 2.5 मिनट आपने उस टॉपिक के बारे में बोलना होता है, विच दे गिव यू 30 सेकेंड्स टू प्रिपेयर फॉर. उस 30 सेकेंड्स में आपने ना पूरा का पूरा वो 2 मिनट का लिखना नहीं है, आपने उसमें कीवर्ड्स लिखने और फिर आपने उन कीवर्ड्स को अपने सामने रख के उस टॉपिक के बारे में they बोलना. provide you with a notepad and a Yes. pencil so you can jot down your main highlight points, and they are also judging you for your pronunciation. तो वो जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना इंट्रोडक्शन, उसमें आपको आपका पासपोर्ट बोलेगी और बोलेगी रीड योर नेम एंड ऑल फ्रॉम द पासपोर्ट. सो यू हैव टू रीड द प्रॉपर नेम फ्रॉम द पासपोर्ट ओनली. एंड इंट्रोडक्शन में ना जरूर हाय आई एम दिस बोलने के बाद गुड मॉर्निंग, इट्स अ ब्राइट सनी डे, ओह इट्स बीन रेनिंग द होल मॉर्निंग. Well, so you have to add these things in an intro to make it an interesting and to let her know that you are a good orator or a speaker. Now जो third And you're part, comfortable with the language. right, जो थर्ड पार्ट होता है जी, उसमें ना आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, शी विल बी इंटरेक्टिंग विद यू ऑन अ टॉपिक, एंड देन उसमें आपने उस टॉपिक के बारे में ना यू हैव टू टॉक अबाउट इट. So what I will advise It is you, more like a conversation. it is more like a conversation. Yes. She will present you and it is generally maybe related to the cue card or totally diametrically opposite. मतलब cue card में जैसे उसने बोला हाँ जी what do you think about grandparents you know using technology, और जो जब इंटरेक्शन कर रही होगी तो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, what do you think about the political context of our country. So they want to check you on variety of topics and they want to check you on variety of your speaking skills in terms of different Your topics. vocabulary, your lexical resources. Yes. So now what I will say is इसके लिए प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ी की है कि अपनी जो अर्धांगिनी है या अपने जो पार्टनर है उसको पकड़े और 1 महीना घर में टोटली इंग्लिश में ही बात करें. You Just say, "Can I have imagine a you're living chapati?" in yes, Yes. you just imagine you're living in a country full of Englishmen and nobody understands Hindi. Accent does not matter. मैंने वैसे Yes. चपाती बोला है, बट आप नॉर्मल इंग्लिश में बात करें. एक्सेंट का आपके कोई नंबर नहीं है उसमें. सो यू हैव टू बी इन नॉर्मल इंग्लिश, कंफर्टेबल, फ्लुएंसी. Confident. और एक घर में अपना ना, जैसे हमारे घर में एक बच्चा था जिसको कहते थे हम ग्रामर नाथ जी, एक वो बच्चा हो ना तो फिर तो आपको काफ़ी सिक्योर कर देगा वो. हाँ, they will correct you. But it's very important to get feedback from the people you are speaking with. Right. So guys, I hope in today's vlog we have tried to give you best insights Also- for giving great scores. Also, we are going to give you a lot of resources that we used Yes. online Very, for very preparing for speaking and reading and listening. So we are going to give a lot of links which you can also use. I think So my those are favorite on superb. YouTube, one lady that you need to follow is Fast Track IELTS, the best. उसकी अगर आप वीडियोस देख लो ना 10-12 घंटे की लेवी, it is more than enough, and if you try to adapt and follow to her, excellent. So guys, I hope you liked this vlog and it was informative, and I hope you score a perfect band in IELTS. So thank you and keep watching our channel, and next one is going to be even more interesting. Bye. Bye bye.